Hello, everyone, and welcome to the next episode of WOW series, Words of Wisdom, conducted by CA students, where we invite distinguished chartered accountants from various fields and verticals to share their journey and wisdom with us. This isn't just an event, it's a celebration of learning and laughter, brought to you by the Winners Circle, a community for CA students. Our motto is from peers to professionals, and trust me, today's session is going to make that motto feel very real. Before we dive in, a quick announcement. Our first project, the anthology, named Education, is on its way. So, if you have ever wanted to see your name in print and not just on the exam papers, this is your chance. Follow us on social media for updates. Now, let's welcome our esteemed guest, Professor C.S. Amit itself. You know, to most people, law sounds like a boring subject, but with Professor Amit Mishra sir, it's an exploration and a guaranteed way to make your source soar. Yes, CS officially stands for Company Secretary, but to our students, it also stands for Concept ke Samrat. Professor Amit Mishra isn't just a company secretary and lawyer with over 6 years of teaching experience across CA, CS, and CMA course. He is the magician who takes the scariest section of law and turns them into something even a sleepy student can enjoy. He began teaching CMA final students as the youngest member of his team. Imagine when most of us were still trying to survive revision marathons, he was already teaching future professionals. That's just not that's not just expertise. That's another level of dedication. So, let's now invite the TWC members to continue with the interview questions. Thank you. If you have not chosen to be a professor, what would be your career? Uh, I might I might have went into some sports or something. Like I am a national level taekwondo player, a state level volleyball player. So I would have made my career in sports or something. Because education, see, I always say that I am an accidental teacher. Well, I started just to make some money to support my house, okay, support my household. But after that, the response that I got from students, so I thought that yes, I belong here. So I started. Otherwise, I would have been into sports, definitely into sports. Like I am 6'3" also. No? I have that everything I have. I want for playing sports. Wow, that's really great, sir. Like a rare combination of outdoor games and indoor studies. Yes, yes. But you have like great experience and you have mentored thousands of students and even AIRs. So, like, do you recall any such great experience which might be very heart touching to you or maybe motivational that you have come across as a professor? Because even if you say you are an accidental teacher, still you have ensured people and CA students and not just CA students across all the professions to achieve their dream degrees. So, can you share any such experiences? To be very honest, there are so many instances. Every now and then, I get messages like, "Sir, we had this kind of situation. Now we are in this situation. That is because of you, or that is because of their efforts and everything." But I remember one such incident which occurred, lately. Like I was in Gujarat, Junagadh, Gir. There is a student called as Maulik. Okay, Maulik is a student. He came to me. That was my last lecture that day. So he came to me, emotionalized, about to cry. Last lecture, so we'll not meet again. ऐसा कुछ. He's originally from Chhattisgarh. So he came to me and he said, "Sir, मैं कुछ तो करके दिखाऊंगा सर. मैं लाऊंगा रैंक लाऊंगा कुछ तो करके दिखाऊंगा." When results came, he was the first person to call me and said, "Sir, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको रैंक लाके दिखाऊंगा." So he got, I don't recollect properly, but he got AIR 38 or 39, I think so. ठीक है. तो मतलब वो बोल रैंक लाना, very confidence. अच्छा, ऐसे ही एक भावना must know that there was a student in JK Shah classes का वाशी branch, प्रेम करके नाम था उसका. He used to travel daily from Alibag to Vashi. डेली अलीबाग से वाशी आता था. दोनों में से एक बैच में था, प्रेम करके. अभी ही इज इनटू लिंक्डइन आल्सो, ही इज कंटेंट क्रिएटिंग आल्सो, क्रिएटिंग कंटेंट आल्सो.
तो डेली अलीबाग से आता था, अलीबाग से डेली वाशी 2.5 hours धैर्य अप एंड 2.5 hours डाउन, मतलब दैट मीन्स 5 hours ऑफ ट्रैवलिंग टू अटेंड 6 hours ऑफ लेक्चर, दैट मीन्स उनका 11 hours यहाँ ही खत्म हो जाता था. सो वॉट ही यूज टू से कि सर मैं ट्रैवल करता हूँ ना तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ, तो घर पे जाके मैं फ्री हो जाता हूँ. 2.5 hour में पढ़ाई कर लेता हूँ, 2.5 hour आने जाने में मैं रिवाइज कर लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है. एंड वोट बिलीव देयर ही स्कोर्ड 271 इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन सीए फाउंडेशन, बट ही वाज अनेबल टू क्लियर बिकॉज ऑफ मैथ्स. ही गॉट मैथ्स में 36-37 कुछ ऐसा मार्क्स मिला उसको. सो बट नेक्स्ट अटेम्प्ट ही बाउंस बैक, he cleared his foundation, he cleared it inter, he cleared his inter also. I don't think I don't have knowledge because उसके बाद उसे कांटेक्ट नहीं हो पाया. बट दीज आर स्टूडेंट्स हु आर रियल मोटिवेशन, मतलब इनको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ. यूजुअली पीपल से कि सर हम आपका शेड्यूल देख के इंस्पायर हो रहे हैं, बट ऐसे बच्चों को देखकर मैं इंस्पायर होता हूँ हु आर पुटिंग एफर्ट्स. अभी देर आर सो मेनी स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट था जिसको फाउंडेशन में 98 आया था फर्स्ट अटेम्प्ट, इन सेकंड अटेम्प्ट इसको 298. So that much difference. So these people are motivation to me because what I believe is कि जो टॉपर है वो एनी विच वेज पढ़ेगा, उसको मुझे बस गाइड करना है ना. जो टॉपर नहीं है, जिसको खींचना होता है, अगर वो खुद एफर्ट डाल रहा है, तो दैट इज रियल मोटिवेशन एंड वेयर आई गेट मोटिवेटेड टू टीच देम. Great, sir. It was truly inspiring through that live examples. But this was the And I have so offline many example. stories with me, and I can connect Yes, you with those students as well, and those students sharing their stories in your winner circle would be like cherry on the cake because this is what student needs. ठीक है, this is the need of the hour. द रीजन बीइंग कि सब लोग बता रहे पढ़ना कैसे, बट वो पढ़ते वक्त मेंटली खुद को बैलेंस कैसे करना है. दिस कैन बी इंस्पायर्ड बाय योर फेलो स्टूडेंट्स ओनली. जो क्वालिफाइड हो गया है वो तो यही बोलेगा कि पढ़ो 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 पढ़ो, बट जो उस चीज से गुजर रहा है उसका एक्सपीरियंस जब आपको मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, एंड विच योर विनर सर्कल कैन डू. definitely, sir. So these were some offline examples, but you are renowned teacher as an online class also. So how you feel that offline classes and online classes are different and which you enjoy the most? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफलाइन कोचिंग इज लाइक अनमैचेबल. ऑफलाइन कोचिंग में जो ऑरा होता है, जो माहौल होता है पढ़ने का, दैट कैन बी क्रिएटेड इन ऑनलाइन कोचिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब यू गाइस बीइंग इन सीए फाइनल आल्सो, ठीक है, सम ऑफ यू आर इन सीए फाइनल, यू नो दिस, ठीक है, कि अगर आपने जो इंटर में पढ़ाई की है फेस टू फेस और जो अभी आप ऑनलाइन बैठ रहे हो, डिफरेंस दोनों में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस हो जाता है. तो व्हाट आई फील इज कि इफ अ स्टूडेंट कैन रीच द ब्रांच, ठीक है, इफ अ स्टूडेंट कैन रीच द ब्रांच, ही शुड ऑप्ट फॉर ऑफलाइन. देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर ऑफलाइन टीचिंग बिकॉज ऑफलाइन में आप डाउट सामने सामने पूछ सकते हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी सामने सामने मिल सकता है, दैट इज मोर एंगेजिंग, मोर इंटरैक्टिंग. आई फील कि आपको ऑफलाइन आना ही चाहिए डेफिनेटली बिकॉज फाइनल में देयर आर सो मेनी कंस्ट्रेंट्स. ठीक है. अच्छा, रिगार्डिंग ऑनलाइन, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट वर्टिकल. जैसे ऑनलाइन में आई कैन हैव एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट वंस, विच आई यूजुअली डू थ्रू माय यूट्यूब लाइव और एवरीथिंग, है ना. वहां पर बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट्स मिल जाता है ना, एज कंपेयर टू ऑफलाइन. बट ऑनलाइन कोचिंग इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी सीरियस एंड हु कैन फोकस, हु कैन कॉन्सेंट्रेट, or who live in such a city where coaching is not accessible very much. For example, a student sitting in a remote village of Karnataka or a remote area of Uttarakhand, है ना. तो ऐसे सिचुएशन में ऑनलाइन कोचिंग इज अ गेम चेंजर, है ना. नो डाउट दैट offline cannot be replaced, but at the same time online should also grow because there are students who need online lecture. So what I believe is, देखो, I am तो very comfortable in online and offline both. ऑफलाइन में बहुत ज्यादा मजा आता है, ऑनलाइन में वो बच्चे को मजा आता है जिसको ऑनलाइन पढ़ना है. जैसे फॉर एग्जांपल, आई शेयर यू एन एग्जांपल. AIR 4 वाज काव्या कोठारी 2-3 years back. I don't know if you know or not. ठीक है, she is right now doing she is in Big Four only. काव्या कोठारी AIR 4, she was online student. ठीक है, she used to sit online daily, वीडियो चालू करके ऑनलाइन बैठती थी. ठीक है. एंड अभी जो AIR 1 आई, दिशा, ठीक है, पीछे May 25, उसने भी मेरे लेक्चर्स ऑनलाइन देखे. ठीक है. तो सीरियस बच्चों के लिए ऑनलाइन है. अगर हर एक बच्चे बोलेगा ऑनलाइन है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज वो उतने कोई सीरियस नहीं हो पाता ना. सी, अभी तो अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया बच्चों का, है ना. बच्चों का क्या, एवरीवन, ठीक है, 1 मिनट का रील बच्चे नहीं देख पा रहे पूरा, है ना. सो व्हाट आई बिलीव इज कि अगर एक्सेसिबल है तो फेस टू फेस, अगर एक्सेसिबल नहीं है तो ऑनलाइन. रिगार्डिंग माई एक्सपीरियंस, ऑनलाइन इज ग्रेट to reach the masses and face to face is great to create that aura, to create that everything what a classroom needs. Perfect, sir. Great share.
And it is true that you need CA students in front of you to mentor you and guide you as well. And in your career, you have guided thousands of CA students, and we, some of us, are also the privileged ones. So when you feel demotivated, or when you feel कि यार आज नहीं lecture लेना है, so how do you tell yourself, because you don't have just a profession to serve, but you have thousand more professionals whom you are building. So what is your why do you go to classes even when you are tired or you feel like procrastinating? I'll share you a very honest review. So my dad is auto driver. So he used to drive auto from morning 8:30 a.m. to evening 9:30, 10 o'clock, है ना? Which is roughly around 13, 14 hours per day. And somehow he managed to, educate my sister, me. My brother is also in CA final. My sister is chartered accountant. I am a company secretary. So whenever I feel demotivated, or whenever I feel कि अरे मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, तो I just look up to that man, ठीक है? That what he has done for us. तो उन्होंने जो किया है ना, उसका तो मैं 1% भी नहीं कर रहा हूँ. So that is the reason, that is the real motivation which comes to me. And to be very honest, मैं स्टार्टिंग से ही काफी हार्ड वर्किंग रहा हूँ. मतलब कभी मैं ऐसा फ्री रहा नहीं हूँ. जैसे कॉलेज में भी था तो मेरा स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलता था, क्लासेस चलता था. कभी वो आदत ही नहीं रहा ना घर बैठने का. एंड दैट इज व्हाट आई सेड, नो, कि 9 to 5 बोरिंग लगता है मुझे, बिकॉज इट डजंट गिव्स मी किक. ठीक है. सो आई ऑलवेज सी, मतलब ऐसा कभी डिमोटिवेट होता तो पापा के साथ बात कर लेता हूँ, मम्मी के साथ बात कर लेता हूँ. And that is what my problem lies. मतलब I am very conventional. I feel that motivation is a myth. क्योंकि आप एक दो दिन मोटिवेट हो सकते हो किसी वीडियो से, ठीक है, एक दो दिन मोटिवेट हो सकते हो. जैसा अभी ये सेशन चल रहा है अपना, कुछ बच्चे मोटिवेट होंगे 10-15 सेकंड के लिए, फिर वो रील स्क्रॉल करने लग जाएंगे. सो इफ यू वांट सम मोटिवेशन, तो आपको कांस्टेंट मोटिवेशन के लिए अपने आसपास ही देखना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, इन माय केस, माय पेरेंट्स, ठीक है, माय फैमिली, दे कॉन्स्टेंटली कीप मी मोटिवेटेड, है ना. जैसे आपके केस में भी डेफिनेटली देयर विल बी सम और द अदर पर्सन इन योर फैमिली और योर फ्रेंड्स हु कॉन्स्टेंटली पुशेस यू टू डू बेटर एंड बेटर. ठीक है. फॉर मी द फर्स्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज माय फैमिली. And the second and very most important motivational factor for me is कि knowing कि एक बच्चा 1 घंटे ट्रैवल करके मेरा लेक्चर देखना है, वो सुबह 7 बजे आने वाला है, वो बैठने वाला है, वो रुका है मेरे कंसेप्ट के लिए, तो मुझे पहुंचना है वहां, उसको वो कंसेप्ट डिलीवर करना है जहां पर उसका पैसा वसूल हो, जहां पर उसका टाइम स्पेन वसूल हो, जहां पर उसके एफर्ट्स को वैल्यू किया जाए. सो दैट इज व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड थ्रू आउट. Excellent, sir. Excellent. I feel that everybody have been motivated now. So, since you are a great combination, being a CS and teaching CA students, what guidance would you like to give to the students who are juggling in multiple courses like CA and CS? Are you asking on behalf of their? Acha. So what I usually say students is, especially if you're pursuing CA, so you first complete your inter level. ठीक है. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीए के साथ सीएस कर रहे हो, तो सीएस ईटी तो यू कैन गिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. अगर आप 5-10 दिन प्रिपरेशन कर लो, 20 दिन प्रिपरेशन कर लो, जो नए सब्जेक्ट है उसको देख लो, बाकी सीएस ईटी यू कैन गिव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. बट व्हाट आई यूजुअली से इज कि दो नाव पर एक साथ सवार नहीं होते, है ना. तो प्रॉब्लम हो जाएगा. देखो, वी आर नॉट अजय देवगन कि दो बाइक पे पैर रख के चलने लग गए, है ना. मुंबई में काफी खंबे आते हैं बीच में, है ना. तो यूजुअली व्हाट आई से कि जब आपका इंटर्नशिप का पीरियड चालू होता है तब आप कुछ कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी इफ आई गिव एग्जांपल ऑफ धैर्य, सो धैर्य इफ ही इज डूइंग सीएस आल्सो, ठीक है, तब इसका जो इंटर्नशिप का पीरियड है, इफ ही इज गेटिंग टाइम, ही कैन गो फॉर क्लियरिंग ग्रुप 1 एंड देन ग्रुप 2, है ना. या फिर साथ में भी दे सकता है, साथ में थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, तो ग्रुप 1 पहले, ग्रुप 2 बाद में, और फिर जैसे अच्छा, जब तक इसका एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा, फाइनल में आ जाएगा. फाइनल क्लियर करने के बाद ही कैन कंप्लीट सीएस का बैलेंस कोर्स या सीएमए का बैलेंस कोर्स, या फिर एलएलबी कर सकता है. जैसे मैंने अपना सीएस खत्म होने के बाद एलएलबी स्टार्ट किया. तो मेरा ऐसा कहना है कि एक साथ दो नाव पे सवार मत होना, अगर आप नहीं हो सकते तो, बिकॉज सी, टू गेन मल्टीपल डिग्रीज यू माइट एंड अप टेकिंग नन ऑफ देम. तो पहले एक डिग्री पे फोकस रहेगा तो दूसरा डिग्री प्रॉपर हो पाएगा. दैट इंटर्नशिप का पीरियड यू कैन डू सीएफए का लेवल 1, लेवल 2. यूजुअली पीपल डू सीएफए का लेवल 2 कर लेते हैं, या ईसीसीए का कुछ एग्जाम्स क्लियर कर लेते, क्रैक कर लेते. सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर इंटर्नशिप का टाइम, विच इज ऑल्सो वेरी हेक्टिक. यू गाइज नो दिस, राइट. ठीक है. तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग गुजर रहे हो उससे, डार्क सर्कल बता रहे तुम्हारे, ठीक है. तो वो हो सकता है. बट अदर देन दैट, एक बार सीए कर लो, एक बार अच्छे से कोर्स कर लो, और उसके बाद बाकी एडिशनल कोर्स करते रहते हो. एंड आई वुड एडवाइस कि मल्टीपल कोर्स के लिए तभी जाना जब तुमको पढ़ना पसंद है. इसके लिए मत करना कि वो कर रहा है तो मुझे भी 2 डिग्री चाहिए. अगर पढ़ना पसंद होगा तो ही मल्टीपल डिग्री हो पाएगा. अदरवाइज लाइक
You will be like someone who is running after degree without having an real intention to acquire it. तो वो थोड़ा सा ध्यान देना कि पढ़ना पसंद होना चाहिए तो मजा आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रील स्क्रॉल करने में मजा आता है आपको, उतना अगर बुक में मजा आ रहा है आपको, तो यू शुड गो फॉर मल्टीपल कोर्स. एंड सीइंग द इंडस्ट्री, आई वुड हाईली रिकमेंड कि मल्टीपल कोर्स का जमाना है गाइस. ठीक है, मतलब नो डाउट चार्ट अकाउंटेंट हैज वैल्यू विच इज अनमैचेबल, बट एडिशनल डिग्री विल गिव यू द एरिया टू ग्रो योर सेल्फ इन कॉर्पोरेट सेक्टर और इन प्रैक्टिस सेक्टर. एंड सी, नॉलेज कभी भी एक्वायर करो, कभी वेस्ट तो नहीं होता. Perfect, sir. This was truly insightful, especially for me. So, yeah, as you rightly noticed, हम हमारे dark circles दिखा रहे हैं, but now we have managed and learned कि time manage कैसे करें. So, what are the other key skills that CA or CS or any aspirants like us must require in today's world to sail through the professional journey after becoming a professional? I would answer this in pointers. Like, first is hard work. There is no replacement for hard work. Nowadays I've seen students की सर important questions दे दो ना, important questions दे दो ना. ठीक है, मतलब मैं बता नहीं सकता मेरे मन में कैसे रिप्लाई आते हैं. ठीक है, कि हाउ कैन यू आस्क फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन प्रोफेशनल डिग्रीज. ठीक है, मैंने ये 5 स्टूडेंट से कभी नहीं सुना है, जो तुम्हारे बैच के स्टूडेंट्स है सब लोग. ठीक है, उनसे कभी नहीं सुना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो करके. ठीक है, बट ये अभी लोग बच्चे आ रहे हैं, तो देर इज नो सब्सटीट्यूशन फॉर हार्ड वर्क. ठीक है, तुमने पढ़ा है, तुम सबने, जितने भी तुम लोगों ने इंटर क्लियर किया, यू गाइस नो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अ मिथ. ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट रिलीज कर रहा है वो वीडियो तो आईसीआई भी देख रहा है ना. तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, उन्होंने घुमा दिए, लो अब क्या करोगे, है ना. सो देर इज नथिंग कॉल्ड एज शॉर्टकट. हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग इज डिस्ट्रैक्शंस. बहुत है आजकल, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है. पीपल start googling one word in which they have doubt, and they end up wasting hours on Instagram and hours on YouTube. ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, हार्ड वर्क, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, डेडिकेशन होना चाहिए. आपका जो सर्कल है, जो स्टडी सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स है, वो लाइक माइंडेड होने चाहिए. ना व्हेन आई से लाइक माइंडेड होना चाहिए, मतलब क्या है, मतलब ये कि उनका सबका गोल एक ही है, टू एज द एग्जाम, टू क्लियर द एग्जाम विद गुड मार्क्स. है ना, अगर एक दोस्त है जो बोल रहा है कि मुझे एग्जाम क्लियर हो रहा है, दूसरा दोस्त बोलता है मेरे को तो फ्राइडे में पार्टी जाना है. ठीक है, तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर आपका सर्कल खराब है, फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा. ठीक है, सो दीज आर 3-4 पॉइंट्स विच स्टूडेंट शुड नो दीज डेज, कि हार्ड वर्क होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, फोकस्ड रहना है. ठीक है, फ्रेंड सर्कल्स वैसा बनाना है जो पढ़ाई कर रहा है. देखो, एक फ्रेंड सर्कल होता है आपका स्कूल का, जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो लोग तो सारे पागल ही है. ठीक है, तो वो आपका एक सर्कल है. बट जो आपका सीए जर्नी का जो फ्रेंड सर्कल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग ऑनलाइन कोचिंग, यू शुड हैव 3-4 फ्रेंड्स. ठीक है, और अगर किसी के पास फ्रेंड्स नहीं है, सो नाउ दे हैव विनर सर्कल. ठीक है ना, आप उनका हैंड होल्डिंग कर सकते हो. जो ऑफलाइन जाते हैं उनके पास फ्रेंड्स है, अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो उसके पास भी विनर सर्कल है. ठीक है, सो इन दैट वे आई फील कि स्टूडेंट शुड कीप दिस 4-5 एस्पेक्ट्स इन माइंड सो दैट दे कैन क्लियर द एग्जाम. एंड मेरा ऐसा मानना है कि अटेम्प्ट लगने पे दुखी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर गिविंग अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. ठीक है, जहां पर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाऊंगा. है ना, बहुत कम लोगों का क्लियर होता है पहले अटेम्प्ट में, बहुत कम, मतलब जो मेहनत करता है. ठीक है, और यूजुअली बच्चे परसेंटेज देख के डरते हैं, पासिंग परसेंटेज. मेरा उनसे ये कहना है कि अगर 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो 100 ने इक्वली पढ़ाई नहीं किया है. 100 में से 50 लोग बिना पढ़े जा रहे हैं. वो 50 लोग हैं जो अच्छे से पढ़ के गए, उसमें से भी 20-25 सीरियसली पढ़े होंगे, वो क्लियर होते हैं. सो व्हेन यू आर काउंटिंग द परसेंटेज, डोंट काउंट इट आउट ऑफ 100, काउंट इट आउट ऑफ 50-60 जो एक्चुअल में पढ़ के जा रहे हैं. है ना, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, रूमर से दूर रहे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें. है ना, so that is something which I have observed in students these days. Truly inspiring, sir. But I feel that running behind clearing the exams, many of the times we lack these soft skills. And for the same, we have built this TWC platform. So, what are your thoughts on some of these soft skills like communication skills and all? Important, very important. I won't name the person, but he or she was in top 5 ऑल इंडिया रैंक उनके रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट के. वन ऑफ माय स्टूडेंट ओनली. वो एक बहुत ही रेप्यूटेड फर्म में गए, बहुत ही रेप्यूटेड फर्म, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कंपनी थी एक्चुअली. दे रिजेक्टेड हर और ये बाय सेइंग दैट यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल. यू हैव नॉलेज, नो डाउट, एंड दैट इज व्हाई यू आर ऑल इंडिया रैंक, but you don't have good communication skill. And these days I think, if you have observed in your industrial training also, that if you don't have communication skill, you lack confidence.
And when you lack confidence, you will, struggle to put your point forward in front of others. ठीक है. So along with चार्ट अकाउंटेंट, मैंने बहुत सारे सीएस को देखा है. ठीक है, बहुत सारे सीएस क्वालिफाइड को भी देखा है, और जो पढ़ रहे हैं उनको भी देखा है. एकदम इंट्रोवर्ट होते हैं, एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, है ना. दे लैक नेटवर्किंग स्किल एंड एवरीथिंग. बट हमारे इंडस्ट्री में एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा भाई. तू ट्रेन में ट्रेवल कर रहे, बाजू लोगों को पूछ कितना कमाता है, आईटीआर फाइल करेगा क्या, है ना. इतने लेवल का बेशर्मी होगा अगर आप में, ठीक है, तो आप बढ़िया करोगे. एंड देयर लाइज कम्युनिकेशन स्किल, कि किससे बात करना है, कैसे बात करना है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ. बिकॉज टुमारो इफ यू स्टार्ट योर फर्म, यू कैन नॉट बी इंट्रोवर्ट ना, कि वो मेरे पास आएगा तो ही मैं उसको काम, मैं तो ही मैं उसका काम करूंगा. अरे भाई, तेरे को उसके पास जाना. तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. और ये दिस इज अ एरिया वेर आईसीआई इज ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स. ठीक है, ये जो करते हैं, ये 15-15 डेज का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स वहां जाते हैं अलग पर्पज से, बट एक्चुअली आईसीआई का पर्पज थोड़ा अलग है. ठीक है, एक्चुअली तुमको डेवलप करना है उन्हें. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. ठीक है, अभी चाहिए मार्केट में ऐसे लोग चाहिए हु कैन कम्युनिकेट. आई वांट टू सी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट लीडरशिप पोजीशन इन द मार्केट. मुझे वो नहीं देखना है कि पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है एक चार्ट अकाउंटेंट. नहीं नहीं, वो तो संभालेगा ही. ठीक है, वो तो उसका कोर है. ठीक है, बट आई वांट टू सी हिम एज अ लीडर. आई वांट टू सी हिम टेकिंग सेमिनार्स. आई वांट टू सी हिम गिविंग प्रेजेंटेशन लाइक एन एमबीए डज. ठीक है, सो कम्युनिकेशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट. Perfect. Thank you, sir, for your great share. It truly makes us understand that this community that we has built also indirectly empowers us and teaches us as well in the journey of creating something valuable. So, as we now move ahead, like जिस तरह आपकी बुक्स है, आपके नोट्स, आपके क्वेश्चन बैंक्स, आपके लास्ट डे रिविजन्स एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट, उसी तरह we are also compiling a book which would represent CA aspirants across the country sharing their journeys. So, what are your views on this initiative of the anthology education? Usually what happens, when we start preparing, when I was a student, ठीक है, हमारे टाइम पर तो इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था. आज तो सब कुछ अवेलेबल है. बट अवेलेबल क्या है? लेक्चर्स, है ना. आप सर्च करो लॉ लेक्चर्स, काफी सारे लॉ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. आप सर्च करो कॉस्टिंग के लेक्चर, काफी सारे कॉस्टिंग के लेक्चर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, बट इफ यू स्टूडेंट, आई वांट टू नो कि जो मुझ पे बीत रहा है वो बाकियों पे भी बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है, और मैं मोटिवेशन कहाँ से लूंगा डेली बेसिस पे. ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप सभी ने फाउंडेशन में लॉ पढ़ा होगा. सबका यही कंप्लेन होता है कि आज पढ़ा कल भूल गया सर, कुछ याद नहीं रहा है, लैंग्वेज कौन सी लिखनी है. तो ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये बाकियों के साथ भी हो रहा है कि नहीं? या फिर जब मैं सीए बन जाऊंगा तो मेरी लाइफ क्या होगी? या फिर तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हो, या जो मैं इंटर्नशिप में हूँ, तो लाइफ कैसे होती है, कैसे उसका अप्रोच रखना है, ये सब बच्चों से कोई बात ही नहीं कर रहा है. ये सब सीनियर्स अपने पास ही रख रहे हैं. एंड देयर यू गाइस कम इनटू पिक्चर, कि अगर तुम ये सब चीज इस बुक के थ्रू अगर स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपडेटेड रखो इस बुक को, कि नए नए एक्सपीरियंस को ऐड करते जाओ. ठीक है, जैसे आज ये हो गया ऑफिस में, कल ये हुआ, अच्छा मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए गया, इंटरव्यू में ये हुआ. ठीक है, दैट वुड बी रियली गेम चेंजिंग. मतलब एक तरफ वो नॉलेज ग्रास्प कर रहा है, सिलेबस पढ़ रहा है, और एक तरफ उसको पता है कि उसकी जर्नी कैसे चल रही है, और उसके साथ जो उसकी जर्नी चल रही है, इज नॉट अलोन ओवर देयर. ठीक है, उसके साथ और भी लोग हैं. ठीक है, वो नाव में अकेले सवार नहीं है, और भी काफी लोग हैं. अगर डूबेंगे तो सब साथ में डूबेंगे, निकलेंगे तो सब साथ में निकलेंगे. एंड देयर दिस बुक्स देयर योर बुक्स विल बी गेम चेंजर, provided there I again tell you that you keep this book updated regularly. ट्रूली कमेंडेबल सर. बट ऑन दिस नोट, अगर आप सीए स्टूडेंट होते हैं तो क्या आप इस एंथोलॉजी में पार्ट लेते हैं? एंड अगर लेते तो भी किस किस बारे में लिखते हैं? आर्टिकलशिप, रिलेशनशिप, या कुछ और? यस यस, मैं पार्ट लेता, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता किसके बारे में? गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, व्हिच आई हैव नॉट थॉट ऑफ. ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में तो बिल्कुल नहीं लिखता, बिकॉज मतलब आई डोंट थिंक ये एंगल आना ही चाहिए आपकी पढ़ाई के बीच में. ठीक है, ऑल्दो देयर इज पर्सनल लाइफ, बट पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए. और तुम सब भी पास हुए तो तुमको पता है ये बहुत अच्छे से. ठीक है, सो इफ आई वुड हैव रिटन अबाउट इंटर्नशिप, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, जो इंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उसको भी तो पता ही नहीं कि मार्केट में फ्लेवर क्या है. जैसे अगर मैं इंटर में हूँ और मुझे जानना है कि मेरा मोटिवेशन क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए, सी इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज नॉट अ मोटिवेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तुम सभी बहुत अच्छे से जानते हो, उससे ज्यादा तुम ऐसे ही खर्चा कर लेते हो महीने का. तो मोटिवेशन क्या है? तो जो नए काम सीखने मिल रहे हैं, कि अच्छा ऑडिट में ये पढ़ा था, आज ऑडिट रिपोर्ट देखा. अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा. अच्छा इंडियस का एप्लीकेबिलिटी सीखा आज, है ना. तो ये सब जर्नी में शेयर करता अपने जूनियर्स से,
ताकि उनको वो इंस्पिरेशन मिलता है कि अच्छा ये करने के बाद ये मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी तुम लोग को इंटर में पढ़ाया जाता है AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो कोई अभी मैं होता तो मैं क्या करता कि आज मैं यहाँ यहाँ ऑडिट पे गया था, मैंने इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, हम लोग को जो एडजस्टमेंट बताए थे वो वहां पर लिखे हुए। तो इंटर का बच्चा कनेक्ट कर पा रहा कि आगे उसको कहाँ पहुंचना है, फाइनल में उसको कहाँ जाना है। तो आई वुड हैव रिटन ऑन माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। One last question from our end. After that, we would be opening the chat box for the questions. And the last question is कि जिस तरह आपने कहा आप अभी भी मेहनत करते हो. So now when you see yourself, you have reasonably everything in your life. So now what is your next target? Or now when you look at anything, so what is the next notch which is higher for you? So what are you now working towards? नेक्स्ट टारगेट इज वेरी स्मॉल, छोटी सी ख्वाहिश है दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स should know my name. Yes, there is a person called as CS Amit Mishra who teaches law. Like all of Mumbai knows, all of Gujarat knows, but I want pan India to know that yes, there is CS Amit Mishra who teaches law. मतलब ये कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, मतलब I believe I would reach this target very soon. मतलब I might not know, I would have already be there, ठीक है, कि बच्चों ने देखा है काफी जगह से मेरे लेक्चर्स, बट अभी तो पता नहीं, मतलब कभी कभी मैसेज आते हैं कि सर मैं दिल्ली से हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, ये हूँ, बट दैट शुड बी लाइक ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। Perfect. So now we are opening the chat box, and the first question is from Sarthak. Sir, you pursued CS and are now you are teaching as a CA faculty. How did you transition work out? How did this transition work out for you? Also, may I ask why did you choose not to go for CA? Just curious to know more about your journey. फर्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन दैट व्हाई आई डिडंट गो फॉर सीए, बिकॉज माय सिस्टर वाज डूइंग, ठीक है। वो सीए कर रही थी तो हर अच्छा वो बड़ी है मेरे से, अच्छा ज्यादा भी बड़ी नहीं है, शी इज 95 बॉर्न, आई एम 97 बॉर्न, ठीक है। तो क्या है ना, जब ज्यादा एज गैप नहीं होता ना सिबलिंग्स के बीच में, तो मुझे पसंद नहीं कि मुझे कंट्रोल करे। तो अब वो जब सीए कर रही थी तो उसको तो पूरा कोर्स के बारे में पता था, तो मुझे हर बात पे मेरे को ऐसा लगता कि वो मुझे टोकती कि ऐसा कर वैसा कर ये कर वो कर, तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं था कि वो मुझे इंटरप्ट करे। एंड एट द सेम टाइम आई यूज्ड टू प्ले ऑल्सो ना, ठीक है, मेरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी चलते थे। तो आई थॉट कि इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊँ शायद सीए को, तो आई वेंट फॉर सीएस, है ना, ऐसा कुछ बड़ा रीजन नहीं है। दूसरा चीज ये है कि आई एम अ CS एंड व्हाई आई एम टीचिंग एज अ सीए फैकल्टी, what was the transition that worked out. So I originally started from CMA, ठीक है, and what I believe is that a person who has done CS has good knowledge of law. तो अगर आपको लॉ पढ़ना है और अगर आप उनसे ही पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, बिकॉज उनका कोर ही वही है ना, कोर ही CS है। सो दैट इज द रीजन, बिकॉज जब आप सीए करते हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको उतने लॉज नहीं है जितना सीएस में है। तो सीएस में हम काफी सारे लॉ पढ़ के आए, तो जब जब रेफरेंस आता है तो मैं आपको यहाँ वहां का रेफरेंस भी दे सकता हूँ, जैसे व्हेन आई टीच इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या जनरल क्लॉजेस एक्ट जिसमें दूसरे लॉज का रेफरेंस होता है, तो आई नो सो मेनी लॉज ना, मैं जिनका रेफरेंस दे सकता हूँ। तो बच्चों को वो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन से हम स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट सीख रहे हैं। सो दैट इज मतलब नॉट देयर इज नो नथिंग मोर टू इट, दैट इज व्हाट इट इज। एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि सीए का जगह खाली है, मतलब सीए में पढ़ाना है जेके शाह क्लासेस में। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इनिशियली टू टीच सीएस, आई स्टार्टेड टीचिंग सीएस, स्टूडेंट्स लाइक मी वेरी मच ऑन द प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद सीए का लॉ पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद तो देयर वाज नो कमिंग बैक, ओनली फिर सीए 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 ऐसे ही चल रहा। Truly great, sir. I feel that this gives us the motivation that we should not be in our comfort zone and try to explore as many fields as we can. So there is another question in the chat ki, as a mentor, what is the common mistake you see students making in their law preparation or career approach and how to avoid those? Wasting time. Students these days are wasting time on non-productive activities, finding shortcuts, है ना, not by hurting anything, not learning anything, and then लास्ट में सेइंग सर कुछ क्वेश्चंस बता दो, कुछ अप्रोच बता दो। लास्ट के एक आध महीने में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा है वो एंड तक अच्छे से एग्जाम देगा। तो व्हाट आई फील इज दैट स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग सो मच टाइम। Great, sir. So, with that being said, I guess we are done with the questions. So, now I hand it over to Bhavna, our official MOC. And before that, we really loved hosting you, sir. Hopefully, आपको भी मजा आया होगा. कि बहुत बहुत मजा आया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ये बोलने का इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया है, ये बोलने के लिए भी नहीं बोला है मुझे इन्होंने, ठीक है, जस्ट टू बी वेरी क्लियर।
जो आप लोग कर रहे हो इंटर्नशिप में, पूरा पहले तो सुबह लेक्चर्स अटेंड किया होगा आपने, फिर इंटर्नशिप पे गए होंगे, उसके बाद घर आके आप लोगों ने लॉग इन किया होगा। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज कि आप में से कुछ लोग अगर ऑफिस में भी होंगे, ठीक है। तो आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ये मेहनत करना स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए विदाउट एनी यू नो मॉनेटरी इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज ट्रूली कमेंडेबल। व्हाट यू आर डूइंग फॉर द सीए कम्युनिटी एंड ग्रोइंग सीए कम्युनिटी, है ना, दिस इज वेरी वेरी सुपर्ब। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस दैट स्टूडेंट्स पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है। दिस इज वेरी रेयर दिस डेज कि एक बच्चा तो बोलता है इंटर्नशिप करके आ गया, अब मुझे घर सोना है, घर पे सोना है, वो बुक भी नहीं उठाएगा घर जाके। बट यू पीपल पुटिंग ऑल दिस एफर्ट्स। एक्चुअली नाउ यू वर आस्किंग कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, तो तुम जैसे बच्चों से इंस्पिरेशन मिलता है। आप में और मेरे डिफरेंस थोड़ी है। आप भी सुबह उठ रहे हो 6 बजे, मैं भी उठ रहा हूँ। आप भी रात को 11 बजे सो रहा हूँ, मैं भी सो रहा हूँ। तो इंस्पिरेशन कहाँ से है? ऐसे बच्चों से इंस्पिरेशन आता है कि जब बच्चे कर सकते हैं तो बच्चे तो मुझे देख रहे हैं, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, ट्रूली मीन्स अलॉट। इतनी इज्जत हमारे घर वालों ने की होती तो क्या ही होता। घर वाले तो मेरी भी नहीं करते बेटा, आपकी कहाँ से करेंगे? अरे है ना, नहीं, घर आपकी तो अभी मैं शादी हो बाहर, गई है इसलिए नहीं करते ना। अरे नहीं, मैं बाहर हमारे तो माँ जाऊंगा ना बाप ही अभी नहीं भी, करते। तो सीधा टपली मारना चालू कर देते हैं कि चल चल काम कर, ऐसा। सी अंडरस्टैंड ना, उनके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ। वो लोग बोलते हैं कौन सा सर, तू होगा सर अपने बच्चों के लिए। तो घर पे तो इज्जत कभी मत एक्सपेक्ट करना, वी हैव अ देसी हाउस होल्ड, कभी इज्जत नहीं मिलने वाली। परफेक्ट, +1 सर। और और नहीं मिले तो ही अच्छा है, वरना वरना वी विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, मतलब ना मिले तो ही अच्छा है, वही मोटिवेशन है हमारे लिए भाई। अगर किसी दिन प्यार से बात कर ले तो डर लगता है कि अब क्या हो गया, कुछ किया है क्या, है ना, कहीं आटा तो नहीं गिरा दिया, दूध तो नहीं उबाल दिया पतीले के बाहर, है ना, सब डर लगने लग जाता है। True. So yeah, thank you, sir, for being so lively. And now over to Bhavana for official closing remarks. First of all, foremost, a huge thank you to CS Amit Mishra sir for being here today. Sir, your words and guidance have truly inspired all of us. The clarity of your thoughts, your unique teaching style, and the patience you showed in answering every questions. We are so grateful for the knowledge and directions you have shared because this is what we need in our WOW series, where we call upon prominent CS and CA faculties to share their wisdom. I'd also like to announce that once our anthology named Education is published, the Winners Circle will be presenting CS Amit Mishra sir with a token of gratitude for being a wonderful TWC ambassador. I also want to sincerely thank the TWC team for putting together this wonderful event and giving us the chance to learn and connect. Finally, a warm thank you to each and every one of you in the audience. Your energy and the engagement made this experience even more special. Once again, thank you everyone.